Our subject is English grammar and today our topic is exclamation marks. Students, first of all, in punctuation, what I told you before? Yes, I taught you about capital letters, caution marks and full stop. Students, हम कोई भी sentence जब start करते हैं, सबसे first letter हम कैसे लिखते हैं? First letter always will be capital, okay? और whenever we ending the sentence, we are putting full stop and we are also putting some commas, right? Whenever it is needed. So today now I teach you about exclamation marks. So students, what is exclamation marks? First of all, exclamation mark की sign कौन सी होती है? This is the sign of exclamation marks, right? Exclamation marks हम तब यूज करते हैं जब हम कोई अपनी strong feeling show करते हैं. Strong feeling यानी कैसे? Like I will give you some examples. अगर हमारे पापा हमारे लिए जब केक लाते हैं तो हम कौन कैसे फील करते हैं? We feel surprised. Wow, Dad, you bring cake for me. So वो कौन सी फीलिंग हुई? Surprised, right? So next, okay. So students, sometimes ma'am and mother will scold you. So how you feeling? You feel sad. Yes. अगर मम्मी आपको कभी डांटती तो आप कैसा फील करते हो? Sad, right? Okay, I am giving you next example. हम happy कैसे feel करते हैं? अगर sometimes अगर पापा बोलते हैं चलो आज हम घूमने चलते हैं, so how you feel? Happy. Hooray, right? How we feel? Happy. So all these things shows a strong feeling. Okay. So अगर sentence में कहीं भी हमको strong feeling वाला sentence आता है तो we have to put exclamatory mark after completing the sentence. Okay. So now next I will explain you about anger. Students, sometimes you feeling anger. Suppose if आपकी पसंद की चीज आपको नहीं मिलती है तो how you feel? Yes, you feel angry. Suppose आपने बोला कि I want this thing, but आपकी मॉम ने वो चीज आपको परचेज नहीं करके दी तो how you feel? You feel angry. Okay, so angry is also a feeling. So now next I will teach you about excitement. Excitement means, look, if I am saying tomorrow is a picnic, how you feel? You feel very excited. Oh ma'am, tomorrow is a picnic. So आप सब कैसा फील करोगे? Excited. Excited क्यों फील करते हैं कि हम कल पिकनिक जाएंगे, वहाँ हम कैसे एंजॉय करेंगे? आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ जाएगी, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारी हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है. आई एक्सप्लेन यू अबाउट सरप्राइज, सैड, हैप्पी, एंग्री एंड एक्साइटमेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर क्लियर अबाउट द इमोशंस व्हाट आई टीच यू कि हम हर चीज में अलग अलग फील करते हैं, राइट? जिस चीज में भी फीलिंग आती है तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, so now I am giving you some example. So first example is, this is amazing. This is amazing. So यहाँ पे आपको कोई फीलिंग दिख रही है? अगर आप कुछ लेते हो न्यू चीज या कुछ हम चीज देखते तो हम कैसे बोलते हैं? वाओ, व्हाट अमेजिंग थिंग, व्हाट अमेजिंग केक, राइट? सो ये strong feeling है, right? So we have to put exclamation mark, okay, after completing the sentence. So next example is, what a pleasant surprise, right? What a pleasant surprise. Suppose students, अगर आपको कोई सरप्राइज देता है, लाइक अगर आपको कोई न्यू टॉय लेके देता है अचानक से, तो आप बोलोगे वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. सो यहाँ पे फीलिंग
we have to put exclamation mark here. अगर हमको सेंटेंस में कोई भी फीलिंग आती है एंग्री, सैड होने की, कभी कभी हम सैड भी फील करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मॉम हमको कोई चीज नहीं लेके देती तो वी फील सैड, राइट? और हम हैप्पी कब फील करते हैं स्टूडेंट्स? यू नो, व्हेनेवर मैम आपको बोलती है वाओ यू आर वेरी ग्रेट स्टूडेंट, तो आपको हंसी आ जाएगी उसी टाइम पे, राइट? तो ये सारी चीजें हमको फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. Put a full stop or an exclamation mark at the end of these sentences. Okay, students, sentence finish होने के बाद हमको क्या put करना है? या full stop और an exclamation mark. It's depend upon the sentence. अगर sentence में हमको कोई expression या कोई feeling दिखती है तो we have to put exclamation mark. Exclamation की sign कैसी होती है? Like that. और अगर सेंटेंस नॉर्मली फिनिश हो जाता है, मींस कोई फीलिंग एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, तो वी हैव टू पुट फुल स्टॉप. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट एग्जांपल. दिस इज अ ग्रेट सरप्राइज. स्टूडेंट्स, समटाइम्स यू आर गेटिंग सरप्राइज फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट? इफ मॉम आपके लिए अचानक से केक लेके आ जाए तो हाउ यू फील? यू फील सरप्राइज. ओह मॉम, आप केक लेके आए हो मेरे लिए. So ये एक feeling हुई, right? So we have to put exclamation mark here. Okay. Next, Anuj wears a blue tie. So students, आपको लग रहा है कि इस sentence में कोई feeling है? No. Normally students will wear a tie. Okay. So here we put full stop. Next, what a lovely painting. What a lovely painting. Sometimes if you went somewhere, अगर आपको कोई पेंटिंग दिखी तो आपने बोला ओ वाव क्या तो पेंटिंग है, सो वहां पे एक एक्सप्रेशन आ गया वाव. सो वी हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क हियर. ओके, दिस शॉप सेल्स कैंडीज, राइट? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे या एक्सक्लेमेशन मार्क? ओके, किसी को लगेगा कि वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट? नो, हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज यहाँ कोई फीलिंग नहीं शो हो रही है. ठीक है, हमको जब अच्छा लगता है तो हम शॉपकीपर से कैंडीज खरीदने चले जाते हैं. सो इट शुड कंडक्टेड एज अ नॉर्मल सेंटेंस. सो वी हैव टू पुट फुल स्टॉप हियर. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. व्हाट टेरिबल न्यूज. टेरिबल मींस डरावनी. अगर हम कुछ डरावना सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, राइट? सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, यानी डरने वाली फीलिंग आई, राइट? सो वी हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज टिया सिंग्स ब्यूटीफुली. टिया सिंग्स ब्यूटीफुली, वो गा अच्छा रही है, बट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही है, राइट? सो नॉर्मल सेंटेंस इज देयर, सो वी हैव टू पुट फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट. हम फुल स्टॉप कब लगाते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क हम जब लगाते हैं जब हमारे अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, लाइक सरप्राइज, एंग्री, सैड, ओके, हैप्पीनेस, सॉरोनेस. ओके, और फुल स्टॉप हम नॉर्मली कोई सेंटेंस एंड होता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Put a full stop, a caution mark or an exclamation mark at the end of these sentences. Students, according to the sentence हमको क्या लगाना है? अगर नॉर्मल सेंटेंस हो तो फुल स्टॉप, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको क्वेश्चन मार्क की साइन लगानी है, और अगर कोई फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है सेंटेंस में तो वी हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट एग्जांपल. What is our first example? What are you doing on Sunday? What are you doing on Sunday? Means क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप संडे को क्या कर रहे हो, तो हम यहाँ पे कौन सा मार्क लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. ओके, we put क्वेश्चन मार्क. So next example is what a smart shirt. What a smart shirt. आपको लगेगा मैम पहले वाले what में तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नहीं, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे. क्यों? What a smart shirt.
किसी को बोलते हैं वाओ व्हाट अ स्मार्ट शर्ट, so we have to put exclamation mark here. Okay, next example is Ajay walks home from school. Ajay walks home from school. अजय घर तक जा रहा है, कहाँ से? स्कूल से। तो ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कोई फीलिंग नहीं दिखाई गई है, राइट? So we have to put full stop here. Okay. Next example is how hot this is. How hot this is. Hot, गर्म, यानी फीलिंग आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यों लगाए? बिकॉज हॉट, कोई भी हम गर्म चीज लगाएंगे हाथ पे तो एक फीलिंग आ जाएगी ना, हॉट, राइट? सो वी हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क हियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज वेयर इज द मार्केट। वेयर इज द मार्केट। आप सब कहीं गुम हो जाते हैं या कहीं जगह पे जाते हो तो आप सबसे पूछते हो अरे ये बताना ना ये चीज कहाँ आई। सो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेयर, सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट इज स्प्लेंडिड। अगर आप कोई चीज देख लेते हो अच्छी तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, ओवर एक्साइटेड, ओ क्या तो चीज देख ली हमने, राइट? सो एक इमोशन है यहाँ पे भी, फीलिंग है, सो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, so students, now you are clear about the concept of three things. First, full stop हमको कहाँ लगाना है? Second, question mark कहाँ लगाना है? Third, exclamation mark कहाँ लगाना है? तीनों में डिफरेंस है। अगर हम कोई नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं वेयर, कहाँ, क्यों, तो वो क्वेश्चन मार्क, वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अगर कोई हम फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, हॉट, कोल्ड, एंग्री, सैड, तो उन सब के पीछे हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, refer this video. We will provide you homework in our group. We will interact soon in online session for your queries and homework.